قدرت میں بدل دے، وہ کلام جو تاریخ پہلوؤں کو روشن کرے میرے خدا، مجھ سے بول، اپنے لوگوں سے بول میرے خدا، اس چھوٹے غلہ پر اپنی مہر کی نگاہ کر میرے خدا، اس چھوٹا غلہ پر اپنے کرم کی نگاہ کر میرے خدا، آ میرے خدا جھکے وہ کو تو اٹھانے والا میرے آج ہمیں کبھی شکر ہے یس یسوع مسیح کے نام سے آئیے تشریف رکھیں۔ آئیے بولے ہاللیلویا۔ تیار ہیں کام کے لیے؟ کوئی تیار نہیں؟ چپ ہیں آپ، خاموش ہیں، لگ رہا ہے جیسے بڑی اسٹرگل کرتے ہیں، ایسا ہے؟ چند ایک باتوں کے بعد ہم کام کریں، آپ سے التماس ہے جو لوگ مکتب پر آ کر کام کرنا چاہتے ہیں یا کر رہے ہیں، ان سے التماس ہے کہ برائے مہربانی وقت پہ نہیں بلکہ وقت سے پہلے اسپیشلی کوائر یا گانے بجانے والے ہوتے ہیں، جب آپ سب سے پہلے نہیں آئیں تو پھر کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے کہ ہم دوسروں کی برکت کا باعث بنیں۔ جتنے بیٹیاں جتنے بھائی ہیں وہ سب سے پہلے یہاں پہ آنا چاہیے، آئیں دعا کریں اس مرتبہ پر آ کر، اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں دیں کہ خداوند ہم تیری حضوری میں جانے کو ہیں، خداوند ہم تیری ستائش کرنے کو ہیں کہ جب ہم جائیں ہم بولیں ہمارے رب کھلیں تو وہ سب کے لیے برکت کا باعث ہے۔ پہلی آج نہیں آ سکا کسی وجہ کی بنا پہ، مگر یہ ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم تو ہر وقت تیار ہیں کہ کسی وقت بھی کسی بھی محاذ پہ ہمیں جج کرنا پڑ سکتی ہے۔ آمین آمین۔ تو کوائر سن رہی ہے، جتنی بیٹیاں ہیں جتنے بھائیاں، آپ صحیح بھائی آپ بھی اگر آپ آتے ہیں معلوم ہے آپ سارا کام کرتے ہیں، مگر کوشش کریں جناب آپ بھی پہلے ہیں، اور نیلا اور نشل اور رومل آپ کی مصباح آپ کی، آپ سب سے پہلے آئیں گے۔ آپ نے مذبح گرم کیا ہو کہ جب خدا کے لوگ مذبح کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ برکت پاتے ہیں، اور آپ نے کسی کے لیے برکت کا باعث بنا۔ جب میں اور آپ کو دوسروں کے لیے برکت کا باعث نہیں بن سکتے تو پھر ہماری ستائش کا، ہمارے آنے کا کوئی مقصد نہیں۔ آمین۔ کلام مقدس میں لکھا ہر ایک چیز کا ایک وقت ہے، ہر ایک چیز کا۔ زمین پر خدا نے ہر ایک چیز کا ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے، ستائش کرنے کا بھی اس نے وقت مقرر کیا ہے، عبادت کا بھی وقت مقرر کیا گیا ہے، جابس کے وقت ہم نے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ تعین کیے گئے ہیں، چاہے وقت یا گھڑی کوئی بھی کیوں نہ ہو، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وقت سے پہلے پہنچے وہاں پر، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں نقصان کا سامنا کرنا پڑے یا جاب ہم سے جاتی رہے۔ ڈر ہے، خوف ہے، مگر خدا کی حضوری میں ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہاں محبت کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، آمین، اس طرح سے آنا چاہیے کہ ہم نے اپنا بیسٹ دینا ہے، اپنا بہترین خدا کی حضوری میں دینا ہے، آمین۔ تو نیکسٹ سنڈے کوشش کیجیے گا، بادشاہ کی عبادت ہے، اس پہ ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ کہ کیا کیا جائے۔ تو میرے ساتھ نکالیے سیمپل کتاب اس کا پہلا باب۔
सैमुएल पहला बाब 7वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक पढ़ना है। चूंकि वो साल बसाल ऐसा ही करता था जब वो खुदावंद के घर जाती, इसलिए फिनना उसे छेड़ती थी। चुनाचे वो रोती और खाना ना खाती थी। सो उसके खावन अल्काना ने उससे कहा, ऐ हन्ना, तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों आज़ुर्दा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? और जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वह नहायत गंभीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और ज़ार ज़ार रोने लगी। और उसने मन्नत मानी और कहा, है रब्बुल अफ़वाज, अगर तू अपनी लौंडी को की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर लूंगी और आफ्तर और उस्तरा उसके सर पर कभी न फिरेगा। और जब वो खुदावंद के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था। और हन्ना तो दिल ही दिल में कह रही थी, फक्त उसके होंठ हिलते थे पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशा में है। सो एली ने उससे कहा, तू कब तक नशा में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं है मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूं। मैंने ना कोई नशा पिया, पर खुदावंद के आगे अपना दिल उड़ेला है। तू अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ। मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस अब तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया कि तू सलामत जा और इस्राएल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उससे मांगी है पूरी कर। उसने कहा, तेरी खादमा पर तेरे करम की नजर को। तब वो औरत चली गई और खाना खाया और फिर उसका चेहरा उदास न रहा। ये कहानी जो है, स्टोरी हम सब ने कई दफा पढ़ी हुई है। हन्ना की दुआ के ताल्लुक से इस कहानी को हमने 20 बार सुना है कि किस तरह हन्ना जो है वो खुदा की हजूरी में जाती है और वो दुआ करती है, वो रोती है, वो चीखती है, मगर उसकी दुआ का एक एजेंडा है। क्योंकि इसका खामन जो अल्काना है वो हर साल नजरें गुजराने के लिए सैला में आया करता था और इस इलाका में आकर वो खुदावंद को नजरें गुजरानते और फिर हन्ना मौका पाकर खुदावंद की हैकल में जाती और दुआ करती। मैं इसका कॉन्टेक्स्ट बताना चाह रहा हूं आपको कि वो जाती, दुआ करती, वहां पर चीखती, वहां पर रोती और खुदावंद
शौहर की तरफ रग़बत होगी, मगर उसकी रग़बत तेरी तरफ ना होगी। वो उसे छेड़ती थी, वो उसे मजाक करती थी। और इस हन्ना के पैसेज में बहुत सी स्टोरीज हैं, बहुत से टॉपिक्स हैं जिन्हें डिस्कस किया जा सकता है, मगर मैं आज चंद लोगों के लिए एक खास बात आपसे करना चाहता हूँ इस पैसेज में, और वो है दुआ में किसी चीज का हामिला होना। ये लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, वैसे हमने हामिला होने का लफ्ज जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि जब कोई खातून जो है वो गुलाब से होती है उसी का। हामिला होने का मतलब बुनियादी तौर पर यह है कि किसी भी चीज को खुद में जन्म देना, किसी ख्याल को, किसी सोच को,
किसने है? हन्ना ने। मगर अब हन्ना खुदा की हुजूरी में मौजूद है, और जब वो खुदा की हुजूरी में जाती है तो वो खुदा की हुजूरी में चीखती है, चिल्लाती है, और उसकी दुआ बड़ी खूबसूरत है। लिखा है जब वो सैला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली कहन खुदावन की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था, और वो नहायत दिलगीर थी। यानी ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया हुआ है दिलगीर होना, इसका मतलब है दिली तौर पर टूट जाना। उनको तो तौर पर टूटी हुई थी, शिकस्ता थी, चीख रही थी, और खुदा से कहने लगी सारों कतार रोकर। उसने मन्नत मानी और कहा रब्बुल फाल अगर तो अपनी लौंडी पर करम की निगाह करे। किस पर निगाह करे? लौंडी पर। ये मेड सर्वेंट खुद को कह रही है। खुदा अगर तो अपनी लौंडी पर, अपनी इस नौकरानी पर निगाह करे, करम की निगाह करे, तो वो औलाद जो तू मुझे देगा मैं तुझे दे दूंगा। तो बहुत सी चीजें जब दुआ में सिंपली प्रेयर करने से नहीं मिलती तो वो मन्नत मानने से। क्या करें? हन्ना वो एक लेसन दे रही है मुझे और आपको। जब आप दुआएं करते हुए थक जाते हैं तो खुदावंद की हुजूरी में आए और उससे कहें खुदावंद, क्योंकि खुदा चाहता है बाज़ औक़ात कि हम उसकी हुजूरी में कोई मन्नत माने, हम उसकी हुजूरी में कोई ना कोई अहद करें कि खुदावंद देख अगर तू ऐसा करेगा तो फिर मैं भी तेरे साथ ऐसा करूंगी, अगर तू मुझे औलाद दे देगा तो देख मैं तुझे वो औलाद वापस रिटर्न कर दूंगी। मगर फिर उसके बाद कोई मुझे ये कहने वाला नहीं होगा कि तू बांझ है, तू औलाद वाली नहीं हो सकती, या तेरा शौहर की रग़बत तेरी तरफ नहीं हो सकती। इसलिए हन्ना आज खुदा के हुजूर नए तरीके से आई है। उसने अपनी दुआ के पैटर्न को चेंज किया। तो अगर आप बहुत देर से एक ही तरह से दुआ कर रहे हैं तो चेंज द पैटर्न ऑफ योर प्रेयर। आप अपनी दुआ के तरीका को बदलें, और जो ही इसने अपने दुआ के तरीका को बदला है, आई वांट टू टेल यू कि चीजें कंसीव होना शुरू हुई हैं, चीजों ने हामला होना शुरू हुई हैं। उसने प्रेयर में, अपनी दुआ में सैमुएल को कंसीव किया है, और वो मन्नत मानकर खुदा को उसने तैयार किया, और ये उसका राइट टाइम था, ये उसका बेहतर वक्त था खुदा के हुजूर सैमुएल को मांगने। अगरचे उसे मालूम नहीं है कि उसे खुदा क्या देगा। खुदा उसे बेटा देता है, बेटी देता है, मगर वो दरखास्त कर रही है खुदा मुझे औलाद वाला कर दे, खुदा मुझे दे दे तो मैं तुझे वो वापस लौटाऊं। अब ये अहद कोई छोटा अहद नहीं है, मन्नत कोई छोटी मन्नत नहीं है। क्या आपकी औलाद है ही नहीं है, आप औलाद मांग रहे हैं और खुदा आपको औलाद दे दे, तो उस सूरत में आप टेम्पटेशन देखें कि आप अपने बच्चे को खुदा की हुजूरी में हैकल में दें और छोड़ दें, फिर उसे मिले। जहां माँ हर रोज बच्चे के साथ खेलती है, उसे पालती है, उसे देखती है और चाहती है कि हर रोज बच्चे को देखे, मगर हन्ना कैसा फैसला कर रही है? खुदा मैं उसे तुझे। हम में से बहुत से दुआएं कर रहे हैं, दुआएं करते हैं, मगर बाज़ औक़ात हमारी दुआओं का जवाब जो वो नहीं मिल रहा। मैं आपको एनकरेज करूंगा कि खुदावंद की हुजूरी में मन्नतें मांगना शुरू करें, खुदावंद की हुजूरी में वॉज़ जो है वो बांधे कि खुदावंद देख मैं अब ये करूंगा और तू ये कर, तो खुदावंद वो हमारे लिए करेगा। हमें खुदावंद हमारे लिए मुमकिन करेगा। अब ये दुआ की कुदरत है।